اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے رمضان اور دعا۔ رمضان اور دعا کا گہرا تعلق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان میں دعا کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ قبولیت دعا کا موسم ہے، لیکن جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی دعا کو مسترد نہیں کیا جاتا۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے 1753 نمبر پر۔ روزہ دار دعا کرے اور دعا رد نہ ہو، آخر کیوں؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ روزہ دار ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ رب العزت نے فرمایا، روزوں کے احکامات کے درمیان جہاں رمضان کے مہینے کا تذکرہ ہے، وہیں پر یہ ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ رمضان میں مومن روزے رکھتے ہیں، رب کے قریب ہوتے ہیں، اس کی اطاعت اور عبادت کے لیے ہر دم حاضر رہتے ہیں۔ کیا ہی بات ہے روزہ دار کی، وہ اپنے رب کے حکم سے کھانا چھوڑ دیتا ہے، رب کے حکم سے اس کی فرما برداری کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا کیسی عبادت ہے؟ دعا میں کوئی گڑ گڑائے تو جان لیں کہ وہ رب کے قریب ہے، اسے اپنے رب پر بڑا اعتماد ہے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم اس سے مناجات کریں، یا وہ دور ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم بلند آواز سے اسے بلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کو اونچی آواز سے پکارا تھا کہ تم بہرے کو نہیں پکارتے اور نہ ہی غیر حاضر کو پکارتے ہو، بے شک تم سننے والے اور دیکھنے والے کو پکارتے ہو، وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 7386 نمبر پر۔ دعا کیا ہے؟ دعا اپنی حقیقت کے اعتبار سے دل کا عمل ہے، یہ لفظی عمل نہیں ہے۔ جتنی زیادہ دل کے اندر صلاحیت ہوگی، دعا میں اتنی ہی تاثیر ہوگی۔ اسی سے روزے اور دعا کا، رمضان اور دعا کا تعلق بھی پتہ چلتا ہے۔ روزہ انسان کے دل کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے، استعداد بڑھاتا ہے۔ جب دل کی استعداد بڑھتی ہے تو دعا عام دعاؤں سے بہت قیمتی ہو جاتی ہے، اور حقیقتاً روزہ بھی تو وہی ہے جو دعا میں ڈھل جائے۔ میں اس سلسلے میں آپ کی توجہ اس واقعے کی طرف مبذول کروانا چاہتی ہوں۔ آسمانوں پر یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آدم علیہ السلام کو رب العزت نے تخلیق کیا، سجدے کا حکم دیا اور ابلیس نے انکار کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا اور انہیں روکا گیا کہ وہ اس درخت کا پھل نہیں کھائیں گے، اور ان سے غلطی ہو گئی، شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ پھر ندامت ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی۔ قرآن حکیم میں ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں، فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ، تلقا سیکھ لیے۔ تلقا کے لفظی معنی ہے ملنا، ریسیو کرنا۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا ریسیو کیا؟ کچھ کلمات، پھر اس کے مطابق دعا کی۔
तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। ये तलक्का की कौन सी सूरत थी? ये इल्हाम का मामला था। इमाम मालिक बिन अनस कहते हैं, ये एक रोशनी है जो मोमिन के दिल में डाली जाती है। जब किसी बंदे पर रुजू इल्लल्लाह की कैफियत तारी होती है तो वो गिड़गिड़ाता है, अल्लाह ताला के आगे आहुजारी करता है, अपने आप को पूरी तरह से अल्लाह ताला के आगे डाल देता है। उस वक्त उस पर रब्बानी कैफियत तारी होती हैं जो दुआ में ढल जाती हैं। ऐसी ही दुआ रब्बानी दुआ कहलाती है, जिसकी तौफीक उसी को मिलती है जो अपने आप को अब्दियत के मकाम तक पहुंचाता है, जो बंदा बन के रहता है, जो गुलामी के लेवल पर आ जाता है। गहरा एहसास जब बंदे पर तारी होता है तो अल्लाह ताला से खुसूसी ताल्लुक कायम हो जाता है। उस वक्त उसकी जुबान से जिक्र और दुआ के जो अल्फाज निकलते हैं वही रब्बानी दुआ बन जाते हैं। रब्बुल इज्जत ने दुआ करने का हुक्म दिया है, वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अनकरीब जलील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ करने का हुक्म दिया है। अल्लाह पाक ने दुआ का हुक्म इसलिए दिया कि यही बंदे और रब के दरमियान हकीकी ताल्लुक है। इस कायनात में कभी ये हुआ ही नहीं कि कोई अल्लाह ताला को दिल के पूरे यकीन के साथ पुकारे और अल्लाह ताला की तरफ से उस दुआ का जवाब ना आए, क्योंकि अल्लाह ताला का नाम ऐसा है कि जब उसके जरिए दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला उसे जरूर कबूल करता है, और जब उसके जरिए सवाल किया जाए तो वो जरूर अता करता है। ये और बात है कि जवाब बरसों या सदियों के बाद आए, जैसे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि या अल्लाह, इन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमा देना जो इन्हें तेरी आयात की तिलावत करके सुनाए, जो इन्हें तेरी किताब की तालीम दे, जो इन्हें हिकमत की तालीम दे, जो इनके नुफूस का तज़किया करे। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुनी और सदियों बाद ये दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में पूरी हुई। तो वो दुआओं का कबूल करने वाला है, कभी दुआओं को रद्द नहीं करता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी जिस वक्त वो काबा की बुनियादें उठा रहे थे और अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह हमसे कबूल फरमा ले। आज पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख सकती है, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई? क्या अल्लाह ताला ने उन्हें बरकतें अता फरमाई? क्या वो घर अल्लाह की रहमतों और बरकतों के लिए खुला हुआ नहीं है? खुली आंखों से सब लोग मुशाहिदा करते हैं, कभी बारिश में, सैलाब में भी उस घर का तवाफ नहीं रुका। उस घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सजदा करने वाले, तवाफ और एतकाफ करने वाले मौजूद ना हो। बरकतें इतनी हैं कि दुनिया के गोशे गोशे से लोग उस घर में पहुंचते हैं। ये दुआ है। अल्लाह ताला से जब कभी कोई पूरे यकीन के साथ दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करते हैं। वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। जब अपने देश से निकले, अल्लाह ताला के लिए निकले थे, उन्होंने कहा था, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने रब की तरफ जाता हूँ, वो मेरी रहनुमाई फरमाएगा। वो मेरा रब है, वो मुझे खिलाता और पिलाता है। वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ वो मुझे शिफा देता है, जिससे मैं तमा रखता हूँ कि वो यौमुद्दीन को मेरी खताएं मुआफ कर देगा। वो अल्लाह ताला है जिससे उम्मीद बांधने वाला कभी नाकाम नहीं हुआ, जिससे उम्मीद बांधने वाला कभी इस कायनात में तन्हा नहीं रहा, जिससे उम्मीद बांधने वाले को अल्लाह ताला मुअज़्ज़ज़ कर देता है, जिससे उम्मीद बांधने वाले को अल्लाह ताला अता कर देता है। कुव्वत, ताकत और इज्जत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। उम्मीद रखने वाले के लिए उम्मीद का सिर्फ एक जरिया है, सारे असबाब कट जाएं तब भी उससे रिश्ता नहीं कटता। जो लोग किसी मोमिन को तन्हा करना चाहते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि सारे जराए खत्म हो जाएं, ताल्लुकात कट जाएं, इंसान साथ छोड़ जाएं, क्या मोमिन को भी
कोई काट सकता है? क्या मोमिन की कुव्वत भी खत्म हो सकती है? वो तो अपने रब पर उम्मीद रखता है, वो तो उससे दुआएं करता है, और अल्लाह ताला मौजूद है, वो मदद करने वाला है। वो कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं रहने देता, वो कभी उसे महरूम नहीं रहने देता। उस एक अल्लाह का खौफ हो तो इंसान के लिए सारे खौफ हेच हो जाते हैं। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। उसी एक अल्लाह के साथ नाता जोड़ने वाले के लिए ये खुशखबरी है, ये दौलत है कि मोमिन कहीं भी चला जाए वो कभी तन्हा नहीं होता। जो अल्लाह ताला का खौफ रखकर, उससे उम्मीद बांधकर उससे दुआ करता है, अल्लाह ताला उसका दामन अपनी रहमत से भर देता है। फिर क्यों ना उससे दुआ करें, क्यों ना उस पर उम्मीद बांधें, क्यों ना उस पर एतमाद करें। जो अल्लाह पर एतमाद करता है, अल्लाह ताला उसे खुशखबरी देता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु। जो एक अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाता है। और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। जब कभी कोई एक अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह ताला उसका दामन भर देता है, अल्लाह ताला उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जो अल्लाह ताला से तौबा करता है, अल्लाह ताला उसके दामन पर लगे हुए स्याह धब्बे मिटा देता है, उसका स्याह दामन सफेद कर देता है। जो अल्लाह ताला की तरफ लपकता है, वो जमाने भर में सबसे मुनफरिद और मुअज़्ज़ज़ हो जाता है। या अल्लाह, हमें अपनी जात का सच्चा फहम, सच्चा शऊर और हमें अपनी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। हम तुझसे दुआएं करें और तू हमें अता करे, हम तुझसे मांगे और तू कभी हमारी मांगों को पूरा करते हुए न थके। या अरहमर राहिमीन, दुआ की तौफीक दे, इलाही दुआएं करना सिखा दे। हाँ, दुआ तो एक लंबी रस्सी है, दुआ तो रब्बानी राबता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के साथ हरगिज कोई तबाह नहीं होगा। ये रिवायत मवारुज़ ज़मान की है, 2398 नंबर पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब आसमान दुनिया पर उतरता है जबकि रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी होता है। वो कहता है, क्या कोई सवाल करने वाला है कि मैं उसको अता करूं? कोई दुआ करने वाला है कि मैं उसको कबूल करूं? है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं? सही बुखारी की रिवायत 1145 नंबर पर है। रमजान का महीना दुआ का महीना है, तौबा का महीना है, ये दुआओं की कबूलियत का महीना है। रमजान के महीने में जिसके होंठ प्यास से खुश्क हो जाए, वो जिसका पेट भूखा रह जाए, कसरत से दुआएं मांगकर, अपने रब से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफी मांग सकता है, अपने लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयां मांग सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नेक बंदों का वसफ बताया है, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैराती व यदूनना रगबन व रहबन व कानू लना खाशिईन। सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 90 है। ये सब लोग भलाई के कामों की तरफ लपकते थे और हमें शौक और खौफ से पुकारते थे, और ये सब हमारे आगे झुक जाने वाले थे। तो दुआ करने वाला रोजादार हो, रमजान का महीना हो, दुआएं कैसे कबूल ना हो जबकि दिल का यकीन हो और रब के आगे अपने आप को बिछाकर दुआ मांगी हो। लेकिन दुआ करते हुए दुआ के आदाब को मलहूज़े खातिर रखना जरूरी है। पहला अदब यह है कि दुआ मांगने वाले के दिल में अल्लाह ताला की जात पर एतमाद और यकीन हो तो अल्लाह ताला उसे अता करेगा, उस पर अपना फजल करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यकुल अहदुकुम अल्लाहुम्मा अग़फिर ली इन शिअता। तुम में से कोई एक ये न कहे कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे बख्श दे। पुख्ता इरादे से दुआ मांगे, अल्लाह को कोई मजबूर करने वाला नहीं है। सही बुखारी की रिवायत है 7473 नंबर पर। दुआ का दूसरा अदब यह है कि कबूलियत के औकात को पेश नजर रखे। मसलन सजदों में दुआ करे, अजान और तकबीर के दरमियान करे, रात के आखिरी तिहाई हिस्से में दुआ करे, फर्ज नमाजों के बाद दुआ करे, नमाज असर के बाद, अरफा के दिन, जुमे के दिन आखिरी घड़ी में। ये उमूमी तौर पर सारे साल दुआओं के औकात हैं और रमजान में सहरो अफ्तार के औकात
दुआओं की कबूलियत के औकात हैं, इनमें जरूर दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। फिर दुआ मांगने वाला दुआ के शुरू में अल्लाह ताला की हम्द बयान करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजे। फिर दुआ में मुसज्जा और मुकफ़ा इबारात इस्तेमाल न करे, तकल्लुफ न करे, न अपनी हद से तजावुज करे। सादगी के साथ, दिल की गहराई के साथ अल्लाह ताला के आगे अपना आप बिछा दे, गिड़गिड़ा कर दुआ करे। फिर गुनाह और कता रहमी की दुआ न मांगे। ये दुआ के आदाब हैं जिनको मलूज़े खातिर रखना जरूरी है। गुरूब आफताब से पहले कितनी गनीमत की घड़ियां मिलती हैं, जबकि सख्त भूख और प्यास लगी हुई होती है। उस वक्त गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ करें, अपने रब से मांग लें। सहर के वक्त अल्लाह हय्यो कय्यूम की बारगाह में इल्तिजाएं करें, क्योंकि हम फकीर हैं और अल्लाह ताला गनी है। हम कमजोर हैं और अल्लाह ताला कवी है। हम फानी हैं और वो बाकी रहने वाला है। क्या ही दुआ थी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, रब्बि जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। कौन है जो अपनी औलाद के लिए दुआ नहीं करना चाहता? कितने ही लोग हैं जो चाहते हैं कि औलाद नमाज कायम करने वाली बन जाए। तो दुआ कीजिए अपने रब से कि हम सबको नमाजें कायम करने वाला बना दे। कौन है जो वालिदैन के लिए दुआ नहीं करना चाहता? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए हमारे रब, मुझे और मेरे वालिदैन को और सब मोमिनों को माफ कर देना जिस दिन हिसाब किताब लिया जाएगा। इलाही हमें माफ कर देना। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि या अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे। कौन है जो अपने काम की आसानी ना चाहता हो? तो दुआ कीजिए, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी तो कहा था, रब्बि इग़फिरली वहबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिम मिन बअदी इन्नका अंतल वहाब। सूरह स्वाद की आयत नंबर 35 है। ऐ मेरे रब, मुझे मुआफ फरमा। कौन है जिसे मुआफी की जरूरत ना हो? दुआ की थी, और मुझे ऐसी हुकूमत दे जो मेरे बाद किसी और के लायक ना हो। बिलाशुबा तू बड़ा अता करने वाला है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्रील व मीकाईल व इसराफील फातिर अस्समावाति वल अर्दी आलिमल गैबी वश्शहादा अंत तहकुम बैन इबादिका फीमा कानू फीही यख्तलिफून। ए जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील के रब, आसमानों और जमीन को पैदा करने वाले, गैब और हाजिर को जानने वाले, तो अपने बंदों के दरमियान फैसले करता है जिसमें वो इख्तिलाफ करते हैं। ए मेरे रब, अहदिनी लिमख्तलिफ फी मिनल हक़्क़ि बिइज़्निका इन्नका तहदी मन तशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। मुझे इख्तिलाफी मसाइल में हक की हिदायत दे अपने हुक्म से, बेशक तू जिसे चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत देता है। सही मुस्लिम की रिवायत है 770 नंबर पर। दुआ कर लें, दुआ फायदा ही फायदा देती है। दुआ अल्लाह ताला की इबादत है। दुआ से खैर और भलाई मिलती है, नुकसान से बचते हैं। दुआ अगर दुनिया में कबूल ना हो तो अजर मिलता है, तो शय आखिरत बना दिया जाता है। दुआ खालिस तौहीद है। दुआ के बाद लोगों के पास जो कुछ होता है उसकी लालच नहीं रह जाती। या अरहमर राहिमीन, तू कमजोरों का रब है, कुव्वत वालों का रब है। हमें अपने अजाब से बचा लेना, हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमाना। इलाही, हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न कर देना। इलाही, अपनी तरफ से हम पर अपनी रहमतें बरसा दीजिए। इलाही, हम तेरे आगे हाथ फैलाते हैं। इलाही, हमारी दुआएं कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है हमें दुआओं की कबूलियत वाला रमजान नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है इस रमजान में हमें दुआओं की हकीकी लज्जत नसीब फरमाए। और इलाही,
ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔